Good morning, my dear students, and hope you are all are fine and you are doing your studies very well. And today I am going to discuss a very important and beautiful concept today, and which is really helpful for you in a future's course of studies and also in your present course of studies. As a students of class 11 or class 12, it's very much necessary. That is, you have to know about very important topic. That name of the topic is inequation and Webby curve. very important. inequations क्या है और उसको कैसे Webby curve method से solve करते हैं. How we are going to solve this particular, that is a inequation, and how to use your Webby curve method to solve such type of inequations. Before going to inequations, you have to know about few basic concept to build up your that is strength in the particular topic. Okay. Now here I am going to discuss about the interval. Okay. So interval क्या चीज़ है, पहले हमें interval के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करना है. So you see I am drawing 4 number lines here. First number line you see there is minus infinity to infinity, means it's representing what? Set of real numbers. और number line क्या represent करता है? Set of real numbers. Okay. And already I believe that you know about what is the number system. Now closed interval means I am symbolized like that. It means what happen? It represent a set. It represent a set containing the element a and b, and also all the element between a and b. a and b के बीच जितना element है सब इसके अंदर रहेगा, और साथ साथ भी end point, ये end point और ये end point भी रहेगा. That's why I am giving a closed bracket. This start bracket मैंने दिया है, closed bracket. इस closed bracket का मतलब है this is represent a set containing a and b and the element between a and b. Okay. And which is representing by set notation as this is a set whose elements are what? Real number. इसका element क्या है? Real number. And which satisfying the condition this a less than equal than x less than equal than what? b. क्या है? ये अगर condition satisfy करे, इसका मतलब है x is belongs to this closed interval ab when x is lying between a and b, as well as x is equal to a and x is equal to what? b. This is the representation. Okay. Whenever you suppose you get 1 less than equal than x less than equal than, suppose आपको ऐसा कुछ मिल गया, तो आप क्या लिखेंगे? You will write it representing the closed interval what? This one. x belongs to what? This closed interval. ठीक है. आप लोगों को समझ में आ गया what is the closed interval. And there are infinite number of real numbers. a and b are two real numbers, and between them there are how many real numbers? Infinite number of real numbers. इसके अंदर बहुत सारे real numbers है, infinite number of real numbers है. ये सारी real numbers इसके अंदर रहेगा और a and b भी रहेगा. ठीक है. This is the closed interval. Now I am representing another. This is called open interval. Open interval means what? The difference between closed interval and open interval is only the end point are not included, but all other point between a and b are included. a and b के बीच जितना element है सब है, but the point a and b are not included. That's why this is representing by this symbol or sometime in the first bracket, and it is a collection of some real numbers. It is a set which is a collection of some real number under the condition a less than x less than b. इसमें से देखिए कि इक्वलिटी नहीं है. इक्वलिटी नहीं है मीन्स व्हाट? x का वैल्यू a नहीं हो सकता, b भी नहीं हो सकता, बट a and b के बीच सारी चीज़ होगा. ठीक है. Whenever you suppose that 1 less than x less than 2, सपोज ऐसा कुछ मिल गया, तो आप क्या लिखेंगे? x is belongs to what? Open interval. x is belongs to what? Open interval, or you can give a fast bracket. ठीक है. Now comes to very interesting one. इस साइड में देखो, इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट साइड इज ओपन, राइट साइड इज क्लोज्ड. दिस इज नेम इज क्लोज इंटरवल, दिस नेम इज ओपन इंटरवल. दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन इंटरवल, और यू कैन से लेफ्ट
लेफ्ट में क्या है, ओपन है, लेफ्ट ओपन हाफ इंटरवल, लेफ्ट ओपन हाफ इंटरवल, और यू कैन से राइट क्लोज इंटरवल, राइट साइड में क्लोज है तो कुछ भी पढ़ सकते हो. दिस इज एन इंटरवल एंड इन दिस इंटरवल व्हाट हैपन, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट open and right hand side is what close. It means what, this is a collection of real numbers which contains all the elements between a and b. a and b के बीच जितना एलिमेंट है सारे एलिमेंट उसके अंदर रहेगा, and together what happen, b is also included. राइट एंड पॉइंट क्या होगा, इंक्लूड होगा, लेफ्ट एंड पॉइंट क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा. एंड इसका नाम, इसका सिंबलाइज ऐसा करते हैं, दैट इज लेफ्ट पढ़ते हैं लेफ्ट ओपन हाफ इंटरवल, लेफ्ट ओपन हाफ इंटरवल और राइट क्लोज हाफ इंटरवल. ओके, सो व्हिच इज ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, व्हिच इज ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स अंडर द कंडीशन x a नहीं हो सकता, x क्या होगा, b होगा, और बिटवीन a एंड b जितना होगा सारी होगा. ठीक है. एंड सिमिलरली इफ दिस इज क्लोज एंड दिस इज व्हाट ओपन, दिस साइड इज ओपन, then it is called right open half interval. It is called right open half interval and which is symbolized in this way. left end point क्या होगा, include होगा, right that is end point क्या होगा, include नहीं होगा. which is a collection of real numbers, और उसके अंदर क्या आएगा, वो सारे रियल नंबर रहेगी जो रियल नंबर ने ये कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई कर लेगा. ठीक है. सो x का वैल्यू क्या होगा, a होगा, x का वैल्यू b नहीं हो सकता, बट whatever the value between a and b all are included and a except what, b. Okay, this is the 4 interval I have discussed, very important, very nice. This will be required whenever you are going to solve to find the domain of a function or when you study calculus. So calculus is such a particular that is a part of a mathematics. In second year when you go to the class 12, I am talking with class 11 student, and when you go to the class 12 there are 44 marks allotted in calculus, almost 50% marks in the subject math calculus. And to understand calculus you have to understand domain, range, function, and a function and its domain and range very well. And in this type of things also very very important is inequation Abicard method, okay, which will be required. So अगर आप ये 11 में जान ले तो आपका डोमेन एंड रेंज में काफ़ी आसानी होगी निकालने, और साथ साथ आप आगे जाके कैलकुलस में काफ़ी एक्सपर्ट हो सकते हो. सो दैट इज़ माई एम टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर क्लास. सो आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास एंड बी फोकस व्हेनेवर आई एम गोइंग टू से. उस ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है. तो दिस इज़ द 4 interval I have discussed. Now I am going to discuss some special that is a interval. Okay, there are some few special interval. Before going to this, I will ask few questions to you. Raise some question on in front of you. कुछ क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने. Minimum value and maximum value of a number. If I say x is greater than equal than 2, or if I say x is less than equal than 3, so these are the some things, some particular inequations. It's called inequations. Okay, later on I'll say it is inequations. तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है. x, the value of x is starting from 2, and where is it is, and we cannot say 2 से शुरू होके it will go and go and go and go and go and right inside. अगर आप इस साइड को राइट मान ले, इस साइड को लेफ्ट मान ले, this is your suppose a number line, this is your 2 and this is negative infinity and this is what, positive infinity. Then x is greater than equal than 2 means what, x 2 से शुरू होके कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स इसमें क्या पता चल रहा है, x का मिनिमम वैल्यू क्या है, x का मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है. एंड x इज लेस देन इक्वल देन 3. इफ आई ड्रॉ दिस इज योर दैट इज ये जो है यहाँ से यहाँ तक, सपोज दिस इज 3. ओके, x, और नंबर लाइन में क्या होती है, बड़ा जो नंबर है, ग्रेटर नंबर ऑलवेज राइट ऑफ द स्मॉलर नंबर. ओके, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग 3 इन द राइट ऑफ व्हाट,
2. ओके, सो x इज लेस देन इक्वल देन 3 मीन्स व्हाट, x 3 से शुरू होके कम होता जा रहा है. इट इज़ मिनिमाइज एंड मिनिमाइज अप टू व्हाट लेवल, अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी. सो इसको क्या लिख सकता हूँ, इससे ऐसे जा सकता हूँ, दिस नेगेटिव इन्फिनिटी. ओके, सो इन दिस केस व्हाट यू अंडरस्टैंड, x का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, बड़ा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3. सो फ्रॉम हियर यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x equal to what, 3, and from here you can say minimum value of x is equal to what, 2. So whenever such type of inequation you get, so you not only read x is greater than equal than 2, from here you can think number line, you can think minimum value or maximum value. So your analysis should be in a multiple direction. Okay, your analysis should be in a multiple directions. Okay, so whenever we get such type of this, we will define some interval, and these interval are called what, infinite interval. So my discussion is now infinite interval. Okay, so I am discussing about infinite interval. Infinite interval. So suppose that this is your number line. I put a number here. Suppose a is any real number. It may be positive, may be negative. This is what, negative infinity, and this is what, positive infinity. Okay, so from here to here, if I say this is a closed, means I am expressing, and that is the number greater than a. So वहाँ से वहाँ तक क्या समझते हो, इसका इंटरवल का नाम है, इस we can represent as a to infinity, and infinity side is always open. Remember that infinity and minus infinity are not real number. Why? Because infinity is what? Infinity is what? We can say 1 by 0, and 1 by 0 is undefined, and undefined things cannot be a number, and you can say it is a real number. So infinity is not a real number. Therefore, when it is this particular representing a number line, so infinity cannot be included. If we include infinity, that means we are saying it is a real number. Okay, हम क्या कह रहा है, उसका रियल नंबर भी बता रहा है, इसीलिए इन्फिनिटी को हम रियल नंबर नहीं मानते. दैट्स वाई क्या है, वह हमें ओपन इंटरवल दिया है. ठीक है, सो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ, वह ए से शुरू होके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, कलेक्शन ऑफ व्हाट, रियल नंबर्स. इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ व्हाट, रियल नंबर्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए. ये जो इनफाइनाइट इंटरवल्स है, इनफाइनाइट मतलब है ऐसे शुरू होकर कहाँ तक ख़त्म होगा पता नहीं है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट कॉल एन इनफाइनाइट इंटरवल्स. एंड इस इंटरवल में आप x इज ग्रेटर देन इक्वल देन a कह रहा हो. x इज ग्रेटर देन इक्वल देन a मीन्स व्हाट, x कहाँ से शुरू हो रहा है, a से शुरू होके उसके बड़ा नंबर जाते जाते कहाँ है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो when x is greater than equal than a, you can write this. So suppose if I give an example here, x is greater than equal than suppose 3. Okay, so what you write, you must understand x is belongs to what, 3 to positive infinity. This side can be given third bracket or first bracket, no issue, because open interval are represented by first bracket or third bracket. ठीक है, then another interval is suppose this side suppose open, this is a up to infinity. So this type of interval open, and this side always open, and such interval is represented, it is a collection of real numbers. ये real number है, collection of real number है, when x is strictly greater than a. इसका मतलब है उस इंटरवल में क्या है, ये a इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड, इसमें क्या है, a इंक्लूडेड है, इसमें a इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ऐसे टिक बड़ा नंबर से ये शुरू हो गया है. ठीक है, सो x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर, इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, एंड इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन. ठीक है, another interval I representing, suppose that this is the what, this is the number a. Okay, this is negative infinity, and this is what, positive infinity. If I say this way, this symbol, इस symbol means x a से शुरू होके कहाँ तक,
नेगेटिव। सो ए से शुरू होकर लेफ्ट में आएंगे तो क्या होगा, एक्स का जितना वैल्यू होगा ये ए से क्या होगा, छोटा होगा। ऑल द वैल्यूज हियर लेस देन व्हाट ए। सो यू राइट दिस इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से। राइट क्या है, ए है, और लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो दिस साइड इज ऑल्सो ओपन, दिस साइड इज ऑल्सो ओपन, एंड व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स such that x is less than equal than what a। तो इसमें क्लोज है, इसीलिए क्या है, इक्वलिटी भी है। सो whenever you get such type of number, अगर आपको ऐसा मिल जाए, सपोज आपको मिल जाए x is less than equal than 2, x is what, less than equal than 2, इसका मतलब है आप समझ रहे हो x बिलोंग्स टू कहाँ है, 2 से शुरू होके नेगेटिव इन्फिनिटी तक। 2 से शुरू होके क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम होगा, कम होते होते क्या होगा, अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है। एंड इफ़ मैं अगर ओपन इंटरवल दे दूँ, इसमें उस साइड में होगा, ये ओपन इंटरवल होगा, तो इस साइड का मतलब क्या है, इफ़ वी रिप्रेजेंट दिस साइड इन द नंबर लाइन एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, एक्स इज लेस देन ए, एंड दिस साइड इज व्हाट, दिस वन, ओके, दिस one, x is greater than a, and in this particular interval this side is what, x is strictly greater than a, and this side is what, x is less than equal than a। तो a से a इधर इंक्लूड हो गया, a इधर इंक्लूड नहीं है। दिस इज व्हाट x greater than a, दिस इज व्हाट x less than equal than a, दिस इज व्हाट x greater than equal than a, दिस इज व्हाट x less than a। समझ में आ रहा है। दिस साइड इज कॉल्ड a to infinity, this side is called what, a to negative infinity, this side open, इस सिंबल से आता है open, this is open, and here you see this is called what, this is what, a infinity, this is open, this is also open, and x less than equal than a, वहाँ से शुरू close up to what, negative infinity। ठीक है। तो आप नंबर लाइन को देख के whenever आप पॉइंट को नंबर लाइन में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, और अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, आप उसका इंटरवल निकाल देंगे। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, दीज आर दी इंटरवल्स यू मस्ट नो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन। ऑलरेडी आप लोगों का डोमेन रेंज डिस्कस हो गया है क्लास में, फिर भी मैं एडिशनल कुछ चीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको आपके लोगों के फ़ायदा होगा। ठीक है। सो ये सारी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप छोटा छोटा चीज़ है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ए ह्यूज प्रॉब्लम। ओके, सो यू हैव टू गिव इम्पॉर्टेंस ऑन स्मॉल कॉन्सेप्ट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल स्मॉल कॉन्सेप्ट। सारे स्मॉल कॉन्सेप्ट एक साथ कर ले तो आपका एक बड़ा नॉलेज होगा सब्जेक्ट में, और आप आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और तब आप जाके कॉन्फिडेंस आएगी। ठीक है। तो अभी मैं कुछ छोटा छोटा चीज़ लिखूँगा। x लेस देन 1, तो उसका मतलब अब क्या समझ में आ रहा है, x लेस देन 1 मीन्स x इज बिलोंग्स टू 1 से शुरू होके नेगेटिव इन्फिनिटी। दिस इज ओनली स्ट्रिक्टली लेस देन, सो दिस इज ओपन, दिस इज ओपन। सपोज x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, तो आपको क्या मतलब आ रहा है, x इज 2 से शुरू होके पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2 से शुरू होके पॉजिटिव इन्फिनिटी। इफ आई से x इज लेस देन इक्वल देन -3, लेस देन इक्वल देन -3, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, x कहाँ से शुरू हो रहा है, -3 से शुरू होके कम हो रहा है, कम होते होते क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, and in since equality is there, so close interval, and this side is always open. Okay, in this way you have to understand. Whenever I say 1 less than equal than x less than equal than 2, you have to understand x belongs to the close interval 1 2. If I do not write and there is equality, then you have to understand this is an open interval. Okay, if I say that is a less than equal than x less than equal than b, then you have to understand that the x is less than equal than b and x is greater than equal than what, a. This is the minimum value, this is the minimum value of x, and this is the maximum value of x.
ठीक है। सो वहाँ से आपको पता होगा x इज लेस देन इक्वल देन, x का हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा b होगा और x का लोएस्ट वैल्यू कितना होगा, उस रेंज में रहेगी, लेकिन मिनिमम a होगा, मैक्सिमम क्या होगा, b होगा। whenever you get such type of inequality, then you from here you can say मैं 1/3 लेस देन इक्वल देन y लेस देन इक्वल देन 3, तो आपको कहेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो you can say maximum value of y is 3 and what is the minimum value of y is 1/3. so in this way we can analyze, ठीक है। Now equation, already you got in school what is equation, involving some variables. So I am giving some examples. Suppose x plus 2 equal to 0, twice x plus 3 equal to 0, x square plus 3x plus 2 equal to 0. Okay, these are the equation. This is a linear equation. Linear means its highest power is what? It is a polynomial and its highest power is what? 1. That's why it is a linear equation. It is a linear equation. It is a linear equation. It is a quadratic equation. It is a what? Quadratic equation. Linear equation में solution कितना है? Only one solution. So what is the solution here? X is equal to -2 only. -2 only. Here what is the solution? The solution is x is equal to what? -3/2. And quadratic equation have exactly two solution or two roots. Two roots. Okay. So you can write x factorize karo x plus 1 into x plus 2 equal to what? 0, and finally your answer is what? -1 -2. तो क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन होता है तो इस इक्वेशन में अभी देखो दिस इक्वेशन दैट इक्वेशन और दैट इक्वेशन, उसका सोल्यूशन क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट मीन व्हाट? वी कैन कैलकुलेट, जिसको हम हिसाब कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कितना है? ओनली वन सोल्यूशन। सो दिस इज फाइनाइट। देयर इट इज ओनली वन सोल्यूशन। देयर आर हाउ मेनी सोल्यूशन? टू सोल्यूशन। फाइनाइट सोल्यूशन, दैट मीन इक्वेशन विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको किसी क्यूबिक इक्वेशन मिल जाए, क्यूबिक इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, तो आपके कितना सोल्यूशन होगा? 3 रूट्स होगा, 3 सोल्यूशन होगा। अगर पावर 4 हो जाए कितना सोल्यूशन होगा? 4 सोल्यूशन होगा। अंडरस्टूड। नाउ इफ आई से x plus 2 greater than equal than 0, or if I say twice x plus 3 less than 0, or if I say x square plus 3x plus 2 greater than equal than 0, whatever be greater than 0 or greater than equal than 0, this type of equation, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो रहा है? x is greater than equal than -2। इसको अगर सॉल्व करें तो x इक्वल उधर 3 जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट? -3/2, and he factorize it x plus 1 into x plus 3 to greater than equal than 0. Okay, now here you see in this equation, this linear equation में how many solution? One solution. But here how many solution? How many solution? There are how many solution? You see the solution is starting from what? -2 and -2। इसका मतलब है, अब नंबर लाइन ड्रॉ करो तो ये है -2 सपोज है, -2 से इक्वलिटी है तो -2 से शुरू होके आप तो कितना है? पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। -2 भी हो सकता है, माइनस ऐसे -2 देन -1 0 देन 1.1 1 ऑल द रियल नंबर्स। देयर आर हाउ मेनी रियल नंबर्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर। दैट मीन्स इस इक्वेशन में कितना सोल्यूशन है? फाइनाइट सोल्यूशन नहीं है। कितना सोल्यूशन है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। So the inequations representing what? How many solution? Infinite number of solution. Equation representing only finite solution. That's very very important. Similarly here also it has this x will satisfy many values. -3/2 से छोटा infinite number of real numbers are there. These are all satisfying this equation. That's what this inequation. So this inequation have infinite number of solution. Similarly, there are many values of x. There are infinite number of values of x which satisfy this equation. Now ये जो quadratic है, इस this type of equation को कैसे हम solve करें? This is the very easy one. Okay, x को इधर ले गया तो हम solve कर लिया, very आसानी के साथ हम solve कर लिया, कोई problem नहीं, कोई issue नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम दिस टाइप ऑफ इक्वेशन मिलेगी तब हम हाउ वी कैन सॉल्व दिस इन इक्वेशन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द क्लास टुडे। आज का क्लास का मतलब यही है, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इन इक्वेशन। ओके, एंड वी विल सॉल्व दिस इन इक्वेशन बाय वेबी-कार्प मेथड। ओके, वी विल यूज वेबी-कार्प मेथड एंड यू विल बी एंजॉय द क्लास। ओके, यू विल एंजॉय द क्लास।
Now, before going to Weber-Curve method, let us discuss the some properties of inequality. Very very important. Properties of inequality. ठीक है? So today we are going to discuss now properties of inequality first, and then moving ahead with Weber-Curve method. So, properties of inequality. एक चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया है, इक्वेशन है फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एंड इन इक्वेशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. सो प्रॉपर्टी ए, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर such that a greater than b and b greater than c. There are three real number I consider. A, B, C are three real numbers. A is greater than b, b is greater than c. Then inequality बता रहा है a is greater than what? c. Very very simple. Like suppose 3 is greater than 2 and 2 is greater than 1 implies from here by logic you can say 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, तो 3 1 से बड़ा होगा. So such type of, this is one property. Very simple property. Next property is if a greater than b implies a plus c greater than b plus c, where c belongs to what? R. c is any real number. सो ये जो इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी के दोनों साइड में कोई भी रियल नंबर ऐड करो तो क्या होगा, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा. इनइक्वालिटी क्या होगा, जैसा थे ऐसा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंबर 3 क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी, सपोज ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर, ए ग्रेटर देन बी implies AC is greater than what BC, where C is greater than 0. C is a real number. That means what happen, if A is greater than B, इस inequality के दोनों साइड में अगर आप कोई एक रियल नंबर C क्या है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा. जैसे मैं एग्जांपल दूँ, सपोज यू नो 3 ग्रेटर देन सपोज 2, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर ले. सपोज कोई भी नंबर, सपोज 3 इंटू सपोज 5 ग्रेटर देन 2 इंटू 5 होगा कि नहीं. 5 इज़ ए पॉजिटिव नंबर. ओके, सो 15 इज़ ग्रेटर देन 10. सो इट इज़ अगेन करेक्ट. अंडरस्टूड. लेकिन and SC is less than BC when C is less than 0. That means very interesting this particular fact is. वहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. when A is greater than B, ये A से B से बड़ा है, then if you multiply it by a negative number on both side, then what happen, earlier sign is was what, greater than, अभी साइन क्या हो गया, चेंज हो गया है. जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, सपोज 3 इज़ ग्रेटर देन 2. ठीक है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2. वो दोनों साइड में अगर मैं माइनस कर लूँ, 3 इंटू सपोज -4 मल्टीप्लाई कर दिया, उस साइड में 2 इंटू -4 मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, 3 इंटू -4 क्या है, -12, ये क्या है -8. तो उसमें कौन सा नंबर बड़ा है, निगेटिव नंबर, कोई भी नंबर के आगे निगेटिव साइन हो. सपोज 8 इज़ व्हाट, इज दिस 8 नंबर, इस नंबर लाइन में पुट करो, क्या होगा, नंबर लाइन में इस 0 ना है, दिस -1 -2. जितना बड़ा नंबर होता है उसका अगर नेगेटिव लगाओ तो वो छोटा हो जाती है. ठीक है, उसके अगर नंबर छोटा लगा, -2 इज लेस देन व्हाट, -1. सो सिमिलरली -12 इज लेस देन व्हाट, -8. समझ में आ रहा है. सो लेस देन, समझ में आ रहा है कि नहीं. सो 3 इज ग्रेटर देन 2, सो आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए नेगेटिव नंबर एंड आई एम गेटिंग व्हाट, साइन इज चेंज. साइन इज व्हाट, चेंज. साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यू मस्ट नो
ये निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें फोकस करके रखना आप कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो या निगेटिव। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा, एंड इफ़ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वलिटी साइन कोई भी हो, अगर ग्रेटर देन हो तो लेस देन होगा, लेस देन हो तो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। Now number 4 property is which is also very important. If a greater than b, a and b are two real numbers, implies 1 by a less than what, 1 by b. If, very very important, if a and b have same sign. Same sign means what? ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल ले लें, सपोज 3 is greater than 2, 3 is greater than 2 implies 1 by 3 and 1 by 2, उनको रेसिप्रोकल करें, उसका ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। The reciprocal of 3 is what, 1 by 3, reciprocal of 2 is what, 1 by 2। रेसिप्रोकल करें तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगी। डेफिनेटली 1 by 3 is less than what, हाफ। 1 by 3 क्या है, 1 by 3 क्या है, this is you consider this is a ball, okay, this is half। 1 by 3 क्या होगा, तो और थोड़ा छोटा होगा। इफ़ यू बॉल को अगर 3 पार्ट कर ले तो 1 by 3 is less than what, ये हाफ से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। So if 3 greater than 2 implies what, 1 by 3 less than half. Here what happened, 3 and 2 are what, of same sign, means 3 is positive, 2 is what, positive, 3 is positive, 2 is positive. So if I say 3 is greater than -2, ये तो आपको पता है 3 is greater than -2, it is correct। लेकिन 1 by 3 less than -1 by 2 होगा, never, because it is a positive number and it is a negative number, it is not correct, it is not correct। That's why इसमें very very important statement is that a and b must have same sign। अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मैं ले लूँ सपोज -3 लेस देन व्हाट, -2, ठीक है, -3 लेस देन -2, उसको अगर रिवर्स किया जाए -1 by 3, ये क्या होगा, -1 by 2। लेकिन यू सी दिस इज -1 by 3 इज ग्रेटर देन व्हाट, -1 by, जितना छोटा नंबर हो उसके आगे नहीं, जितना बड़ा नंबर हो 1 by 3 इज ग्रेटर देन व्हाट, माइनस, ये क्या है, छोटा है, हाफ इज व्हाट, ग्रेटर है। तो ग्रेटर नंबर के आगे नेगेटिव साइन हो तो ये छोटा हो जाएगी। सो -1 by 3 इज ग्रेटर देन -हाफ। तो दोनों क्या है, ये साइन, इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, तो इनइक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अल्टीमेटली ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दैट्स वाई ए एंड बी मस्ट हैव सेम साइन, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, मेनी अ टाइम यू गेट इन स्कूल ऑल्सो, और मे बी फ्यू टीचर्स टेल मी इफ ए ग्रेटर देन बी देन 1 by a लेस देन 1 by b कह दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट आप लोगों को नहीं बताया गया है। ये स्टेटमेंट अगर नहीं कहेंगे तो आपका जो प्रॉपर्टी है ये क्या होगा, अधूरा रह जाएगी। इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट। Another property number 5, more important, AB is greater than 0 और A by B is greater than 0, और इसमें इक्वलिटी भी हो सकता है, नो इशू। ओके, सो AB is greater than 0 और A by B is greater than 0, दैट मीन्स A and B are two real number। ये AB क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज greater than 0 and A and B are real numbers, it is called what, डिवीजन ऑफ टू रियल नंबर्स। उसमें क्या कंक्लूशन आती है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल नाउ, फर्स्ट पुटिंग एन एग्जाम्पल, यू नो 6 is a number which is greater than 0, okay, now 6 can be written as
6 can be written as 2 into 3 और 6 can be written as -2 into -3। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है 6 इज ग्रेटर देन 0, उसको उसके साथ उसका रिलेशन है 6 इज ग्रेटर देन 0, 6 मीन्स 2 into 3 ग्रेटर देन 0। ये सुनो, सो फ्रॉम हियर ये क्या है, 2 इंडिविजुअली क्या है पॉजिटिव है, 3 इंडिविजुअली क्या है पॉजिटिव है, हो सकता है कि नहीं? सो दैट मीन्स व्हाट हैपन इफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन 0 implies both the number are positive, both the number are what, positive, one case। okay, if I say 6 को मैं दूसरा तरीके से लिख सकता हूँ, सेकेंड वे इट इज़ -2 into -3, फिर भी उसका रिजल्ट क्या है पॉजिटिव, -2 into -3 क्या है 6, अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव से अब क्या निकल के आ रहा है, -2 इज लेस देन 0, -3 इज लेस देन 0। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर greater than 0 means what, one case is what, either both the number are positive or both the number are what, negative। so from here you can conclude a b is greater than 0 implies क्या लिख सकते हैं, a positive, b positive और a negative, b negative होगा। दोनों पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगी, दोनों नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करो फिर रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगी। दिस इज द केस, अंडरस्टूड। Now take another example. This case, suppose that 2 by 3. 2 by 3 is a fraction. This is of the type, okay, and this is a real number 2 by 3, and this real number is positive. Okay. Now this 2 by 3 can be written as two ways. It is 2 by 3, or it can be written as what, -2 -3. कैन आई राइट दिस? समझ में आ रहा है? इसमें क्या आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, अंडरस्टूड, बोथ आर व्हाट, पॉजिटिव, बिकॉज ये माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या होगा, 2 by 3 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो फ्रॉम हियर यू कैन कंक्लूड दैट इंडिविजुअल नंबर 2 इज पॉजिटिव, 3 इज पॉजिटिव, वन केस, एंड हियर इंडिविजुअल नंबर 2 इज नेगेटिव, 3 इज नेगेटिव। दैट मीन्स व्हाट हैपन, 2 by 3 पॉजिटिव मीन्स व्हाट, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, और -2 पॉजिटिव नेगेटिव -3 नेगेटिव। उसमें क्या आ रहा है, आप इफ़ यू कॉन्सिडर जनरलाइज दिस, इफ यू थिंक अबाउट दिस वन, a by b less than 0, then what you understand, either a पॉजिटिव एंड b पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, तो a by b क्या होगा, सॉरी दिस पॉजिटिव, ओके, दोनों क्या हो सकता है, पॉजिटिव, ये फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, फिर रिजल्ट क्या हो जाए, अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों केस में क्या देखो, दो केस आ रहा है, इधर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव बी नेगेटिव, और हेयर ऑल्सो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव बी नेगेटिव। सो फाइनली यू कंक्लूड दैट, okay, finally what you conclude, you can conclude that from these two results you can conclude that a positive, b positive or a negative and b negative, कोई भी हो सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ पॉजिटिव हो सकता है या दोनों एक साथ नेगेटिव हो सकता है। दिस इज वन प्रॉपर्टी। नाउ अनदर प्रॉपर्टी, ए बी लेस देन 0, प्रोडक्ट इज लेस देन 0, एंड एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करो तो करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आएगा। आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, यू नो -6 इज व्हाट, नेगेटिव नंबर, इट इज लेस देन 0। नाउ -6 कैन बी रिटन एज टू वेज, यू सी, इट कैन बी रिटन एज 2 into -3 or it can be written as -2 into 3, okay। whenever you are going to analyze an abstract idea, ये क्या है, ए बी के बारे में हम लोगों को पता नहीं, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब डिस्कस करेंगे तो क्या एग्जाम्पल ले लें, पहले एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ले लें, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेके उसको समझने की कोशिश करें। सो इसमें क्या आ रहा है, 2 पॉजिटिव आ रहा है एंड -3 नेगेटिव आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, -2 नेगेटिव आ रहा है और क्या आ रहा है, 3 पॉजिटिव आ रहा है। तो उसमें क्या पता चल रहा है, ये जो -6 है उसका 2 फैक्टर होती है, तो उसमें 2 फैक्टर में एक फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अदर फैक्टर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है,
if this one is positive, other one is negative, and if this one is negative, other one is positive, तो any one must be negative. ठीक है, समझ में आ गया. फिर आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. सपोज -2/3. -2/3 is a negative real number, so it is less than 0. But -2/3 can be written as -2 divided by 3, or you can write written as 2 by -3. Okay, two ways. From here you can write -2 negative, last 3 positive, and this is 2 positive -3, sorry 2 positive -3 negative. ठीक है, तो उसमें फिर दो केस आ रहा है, 1 पॉजिटिव अदर नेगेटिव, 1 पॉजिटिव अदर नेगेटिव. समझ में आ रहा है. सो कभी न्यूमरेटर पॉजिटिव हो रहा है, कभी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो रहा है, कभी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो रहा है, न्यूमरेटर नेगेटिव हो रहा है. ठीक है, तो उस दोनों का कैलकुलेशन क्या होगा, दोनों का क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट कंक्लूजन क्या होगा. ए बी लेस देन 0 मीन्स व्हाट. इफ आई से ए पॉजिटिव, ए एंड बी के बारे में पता नहीं चल रहा है, क्या नंबर है पता नहीं ना, अननोन क्वांटिटी है. तो इफ आई से ए पॉजिटिव, then ऑटोमेटिकली सेकेंड वन इज नेगेटिव, सेकेंड वन इज व्हाट, नेगेटिव. तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाए. ए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव. ओके, और क्या हो सकता है, ए पॉजिटिव ले लिया था पहले बार, तो इफ आई से ए नेगेटिव, ए अगर नेगेटिव हो तो साथ क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा. देन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू व्हाट, अगेन नेगेटिव. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो. सो दोनों का कंक्लूजन यही है. तो इज ए वेरी इंटरेस्टिंग इनइक्वालिटी एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, तो हम आज इस क्लास में इनइक्वालिटी, इनइक्वेशंस क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, इंटरवल क्या है, ये सारी चीज़ के बारे में जानकारी ली. ठीक है, और आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इंटरवल इज इट, व्हाट इज़ इनफाइनाइट इंटरवल, व्हाट इज़ इक्वेशन, व्हाट इज़ इनइक्वेशन, and what are the properties of inequality. Very, very interesting and very, very important one. Okay, so next class I'll directly going to solve the inequation by Webby-Karp method. So I am going to prepare another video and I will definitely discuss about Webby-Karp method. So thank you very much. Thank you.